हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उनके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और ये आपके समक्ष एमसीक्यू भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। त्रिपान स्टडी सेंटर ने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम नर डाल सकता है। इस पे हमने एनालाइज करना है, समझना है और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। लेकिन आपको पता है कि ये पेपर सोल्यूशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हियर, क्लास 10th CBSE NCERT social science here. You know that the most important question paper discussion here. According to question paper, next question arrive here that's important. The question here, manufacturing sector is considered as the backbone of the general and economical development. Examine the statement in the context of India. You know that's important. The manufacturing sector is considered as the backbone of the general and economical development. That's an important question for the exam view here. The manufacturing sector is considered as a backbone. Manufacturing industry not only help in the modernizing agriculture, which form the backbone of our country, our economics. You know that's important. Manufacturing industry not only help to the modernizing culture, which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them a job and secondary and tertiary sector. That's important here. Manufacturing industry is a backbone of India. You know that's an important statement here. First of all, here manufacturing industry help in modernizing agriculture. That's an important point here. It's a help in reducing the heavy dependence of people on the agriculture income, providing to the job and secondary and tertiary sector. That's important. It helps the eradication of unemployment and poverty from our country. That's important here. The eradications of unemployment and poverty from our country. It's a help in reducing original disparities by the establishing industry in the tribes and backward area. That's important here. Tribes and backward area, the industry establishment here. The export of manufactured goods expand trade and commerce. That's important. Export of manufactured goods expanding trade and commerce. Its help is a varying of foreign exchange. Its help in varying of foreign exchange. Countries that are transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. That's important. And industrial development is a preconditions for the eradication of unemployment and poverty from our country. That's important also is a point here. It also help in the wearing down regional disparities by the establishing industry in our tribes and backward area. And it leads to last point here, export
of manufacture good, expanded trade and commerce are bearing much a need of foreign exchange. That's important here. You know that, and the 10 point is the most important. You choose a 5 point in this is the most important for the exam view here. यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ क्वेश्चन पेपर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखता है। और क्वेश्चन यहाँ पर साफ है और क्लियर है कि विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भारत के संदर्भ में कथन की परीक्षण करें। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो होते हैं हमारे भारत देश के लिए और आर्थिक विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है। कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र अगर नहीं होंगे तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा। ये क्या बात सही है? देखा जाए तो विनिर्माण सेक्टर जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और देखा जाए तो भारत नहीं किसी भी देश के लिए और आर्थिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र का अपना एक विशेष स्थान है, इसलिए भारत के संदर्भ में ये बात बताई गई है कि भारत के लिए ये रीढ़ की हड्डी हो सकती है। तो यहाँ पर बात कई हद तक सही है। अगर हम आंसरों की तरफ नज़र करें तो विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यानी देखा जाए तो विनिर्माण के कारण ही कृषि को आधुनिकीकरण बनने में मदद मिली है जो भारत के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर कृषि को कोई आगे बढ़ाता है तो वो विनिर्माण उद्योग ही है और कृषि आगे बढ़ती है तो कृषि तो आपको पता ही है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान मानी जाती है। क्योंकि कृषि नहीं है तो भारत लाचार है और ये बात शायद बड़े लोगों को समझ नहीं आती है कि जितने हम एग्रीकल्चर में प्रोत्साहन करेंगे उतना देश विकास की उस सीमा तक पहुँचेगा। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखता है, बल्कि वो लोग को माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करके कृषि आय पर उनकी भारी निर्भरता को भी कम करते हैं। यानी देखा जाए तो विनिर्माण उद्योग जो है कई लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं और कई क्षेत्रों में नौकरियों का जो है सृजन भी कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो कृषि आय पर जो है निर्भरता जो है बहुत ही कम हुआ है और ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण ही हुई है। देखिए, ये पॉइंट बात इम्पोर्टेंट रखता है। अब हमारे समक्ष कुछ पॉइंट है, 10 पॉइंट है। मैंने इसको छोटा भी करने की कोशिश किया है, बड़ा भी रखने की कोशिश किया है। इन पॉइंटों में से जो आपको सही लगता है, जो आसान लगता है, उसको लिखिए, याद कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट 53 इंस्टीट्यूट सेंटर ने रखा है। तो पहला पॉइंट यही बताता है कि विनिर्माण उद्योग कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उद्योग कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। तो ये जनरल सी बात है कि आधुनिक बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। यह कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करने में मदद भी करता है और उन्हें द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में नौकरियां भी प्रदान करता है। तो ये सब विनिर्माण के कारण ही संभव हो पाता है। आगे देखें तो यह हमारे देश में से जो है बेरोजगारी और गरीबी को निपटाने में भी मदद कर सकता है। विनिर्माण उद्योग जो होती है, जनरल सी बात देखा जाए तो देश से जो है बेरोजगारी गरीबी को हटाने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और इसीलिए इसे जो है भारत के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है। देखा जाए तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो लगाई जाती है इसके कारण आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके उन लोगों को भी साथ में लेके चला जा सकता है जो आज भी आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं और इससे असमानताओं को भी कम करने में काफ़ी मदद मिल सकता है। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार भी होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार भी बखूबी देखने को मिलता है। इवन देखिए तो यह विदेशी मुद्रा लाने में मदद करता है। देखिए, कोई भी देश के लिए विदेशी मुद्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा का जो है वैल्यू अधिक होती है और इससे देश की अर्थव्यवस्था में मदद मिलता है। और विदेशी मुद्रा जो है
भी निर्माण के कारण ही आ सकता है। यानी अगर हम मैन्युफैक्चर के सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है विदेशों में अपने सामानों को भेजेगी, तो विदेशों से जो है विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, और भारत में जब विदेशी मुद्रा आएगी तो भारत की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यह विदेशी मुद्रा लाने में जो है भारत को मदद भी करती है। जो देश अपने कच्चे माल को विभिन्न प्रकार के उच्च मूल्य से सुसज्जित के सामने में परिवर्तन करते हुए समृद्ध होते हैं। ये बात तो सत्य है कि जो भी देश अपने कच्चे माल को जो है उसको समृद्ध और दूसरे चीज़ों में परिवर्तित करते हैं, वो समृद्ध हो जाते हैं। तो भारत भी अगर कच्चा माल उत्पादन करता है और उसको जो है फैक्ट्रियों में जो है मैन्युफैक्चर करवाता है और उसको विदेशों में भेजता है, तो जनरल सी बात है भारत भी समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि कच्चे माल का मांग हर एक देश में रहता है, क्योंकि कच्चे माल से ही हम जो है दूसरे सामानों को बना सकते हैं। इसलिए भारत में ही कृषि की प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है, और कृषि भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात देखें तो हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। यानी देखा जाए तो हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त के रूप में देखा जा सकता है, और यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी मदद करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार भी करता है, और बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा भी लाता है। तो देखा जाए तो हमारे लिए मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाला समय में इसका महत्व और बढ़ेगा, क्योंकि ये बेरोजगारी पर भी प्रहार करती है, तो विदेशी मुद्रा भारत में लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान ही माना जा सकता है। तो इन 10 पॉइंटों में हमने इन बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया, और हर एक पॉइंट को एनालाइज करने की कोशिश किया। अगर आपको इनमें से कोई भी 5 पॉइंट समझ में अच्छे से आ जाता है, तो उन 5 पॉइंट को अपने कॉपी पे लिखिए, याद कीजिए, समझिए, और एग्ज़ाम में उसको अच्छे से लिखिए। और चाहते हो कि ये वीडियो दूसरे बच्चे तक भी पहुँचे, दूसरे बच्चे भी इसको देखें, तो इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों के लिए केयर हो सकता है। बच्चों, सोचना नहीं है, कहते हैं ना, अपनी भलाई तो सब कर लेता है, लेकिन जो दूसरे की भलाई करता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो दूसरे की भलाई की विचार रखिए। जैसे तिरपान स्टडी सेंटर अपना समय काल निकाल के आपके लिए तरह तरह के वीडियो बनाता है और करता है। देखा जाए तो मुझे इस वीडियो से कोई जो है फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे कर सको। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज़ों में फ़ायदा नहीं होती है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर कितना महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने वाला है, ज्ञान वाला है, शिक्षा का स्तर है, तो ये देखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। सोचिए नहीं, विचार रखिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।